بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ اس وقت اپنی ناک کی سیدھ میں چلا جا رہا تھا۔ اس کی طاقتیں اسے بتا رہی تھی کہ وہ بالکل صحیح منزل پر جا رہا ہے۔ اس کے آس پاس سرگوشیاں بڑھ رہی تھیں۔ اس کے کانوں میں بن بناہٹ محسوس ہو رہی تھی اور وہ بن بناہٹ اس سے بتا رہی تھی کہ اس نے صحیح راستے کا انتخاب کیا ہے۔ جلد ہی وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گا۔ جب بھی وہ خوشی سے سرشار ہو گیا تھا، اسے دور سے روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی کسی کے چمکتی ہوئی آنکھوں کی تھی جو بتا رہی تھیں کہ وہ اس کے کہیں آس پاس ہی موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ خوشی سے کھل اٹھا اور تبھی ان آوازوں میں اضافہ ہو گیا تھا کہ سائیں، آپ منزل کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ تبھی وہ انہیں کہنے لگا کہ اسے پکڑ لو، وہ بھاگنے نہ پائے۔ تبھی اس کے ارد گرد سوکھے پتوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دینے لگی تھی اور بھاگتے قدموں کی آواز دور دور تک سنی گئی تھی، اور وہ بھی اب تیز تیز قدموں سے آگے چلنے لگا تھا۔ تھوڑا ہی دور گیا تھا کہ جب اس کے کانوں میں چیخوں پکار کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گیا کہ یہ آوازیں کس کی تھیں، کون چلا رہا تھا۔ جب وہ تھوڑا اور قریب ہوا تو اسے محسوس ہوا کہ یہ آوازیں کسی اور کی نہیں بلکہ اس کے موکلات کی تھیں۔ اب وہ بھاگنے والے انداز میں آگے بڑھا تھا اور سامنے ہی اس کے موکلات زخمی حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ زخمی تھے، کچھ ان میں سے موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ یہ دیکھ کر اسے سخت غصہ آیا اور وہ چنگھاڑتے ہوئے بولا کہ کون تھا یہاں پر، کس نے یہ جرأت کی۔ تبھی ان میں سے ایک موکل بولا کہ یہ اسی کا کرشمہ ہے جس کی تلاش میں آپ یہاں تک آئے ہیں۔ ہم اس کے پاس پہنچ گئے تھے، اسے پکڑنے ہی والے تھے، مگر وہ پھر سے ہمیں دھوکہ دے کر یہاں سے بھاگ گیا اور اس نے ہمارا یہ حال کر دیا۔ وہ وہاں سے آگے بڑھنے لگا تھا۔ تبھی موکلات نے کہا کہ ابھی آپ اس سب کا سامنا نہ کریں، ابھی آپ کے لیے اس کا سامنا کرنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ بہت طاقتور ہے۔ ابھی آپ کو اپنی طاقتوں کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے، اس کے بعد ہی آپ اس کا سامنا کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر اسے بہت غصہ آیا تھا اور وہ منزل کے قریب پہنچ کر نامراد رہ گیا تھا، اور اس کی جھنجھلاہٹ کا اندازہ کوئی کیسے لگا سکتا تھا۔ پھر وہ تھکے ہارے قدموں سے اپنے موکلات کے ساتھ وہاں سے واپس آ گیا تھا اور وہ روشنی کا دائرہ دور ہوتے ہوتے گم ہو گیا تھا۔ آج صبح جب میں سو کر اٹھی تو بابا جھونپڑی میں نہیں تھے۔ میں جھونپڑی سے نکل کر باہر آئی، آس پاس کی جھگیوں میں دیکھا تو سب لوگ ہی اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کئی عورتیں ناشتہ بنا رہی تھیں تو کئی بچوں کو نہلا رہی تھیں، تو کئی لوگ جانوروں کو لے کر جنگل میں چارہ کھلانے کے لیے جا رہے تھے۔ جب عورتوں کو میں نے چائے کے ساتھ پراٹھے بناتے ہوئے دیکھا تو میرے منہ میں پانی آنے لگا تھا، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ تبھی میں نے ان لوگوں سے اپنے بابا کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے میرے بابا کو نہیں دیکھا، وہ کہاں پر ہے وہ لوگ نہیں جانتے۔ یہ سن کر میں اپنی جھونپڑی میں واپس آ گئی تھی اور وہیں پر بیٹھ کر بابا کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یقیناً بابا میرے لیے کھانا لینے گئے تھے اور اب میں یہاں پر بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہی تھی۔ آج گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ہم دونوں کل سے بھوکے تھے۔ اب تو آدھا دن بھی ڈھل چکا تھا اور اب تو میری نکاہت کی وجہ سے بری حالت ہو رہی تھی۔ شام کے قریب بابا گھر آئے تو ان کے ساتھ ایک بھیڑ تھی۔ یہ بھیڑ دیکھ کر میں نے بابا سے پوچھا کہ آپ کو یہ بھیڑ کہاں سے ملی، آپ اسے کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ بابا کہنے لگے کہ یہ باتیں میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، یہ لو میں کچھ سامان لے کر آیا ہوں، جلدی سے کچھ کھانا بنا دو، میری بھوک سے بری حالت ہو رہی ہے، اور اس کھانا بنانے کے بعد اس بھیڑ کے لیے چارہ بھی لے آنا۔ میں نے بابا کی بات سن کر سر ہلا دیا تھا۔ اس وقت میرا بھی بھوک سے برا حال ہو رہا تھا اور میں بھی کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ میں نے شکر ادا کیا تھا کہ بابا کچھ تو لے آئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد میرے حواس قدرے بحال ہوئے تھے اور پھر میں جنگل سے ہی تھوڑا سا چارہ کاٹ کر اس بھیڑ کے لیے لے آئی تھی۔ بابا سے میں نے اس بھیڑ کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ جنگل کے باہر جب میں گیا تو وہاں پر میں نے اس کو دیکھا تھا، ڈری سہمی سی ایک درخت کے پاس کھڑی تھی، اور پھر میں گاؤں میں داخل ہو گیا اور کچھ لوگوں سے مدد مانگی تو زیادہ تر لوگوں نے تو حسب معمول مجھے دھتکار دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم پیشہ ور بھکاری ہیں
और हमारा पेशा ही लोगों से मांग तांग कर गुजारा करने का है। मगर वो लोग ये नहीं जानते कि उनकी ये चुपती हुई बातें और ये नश्तर चुपते हुए जुमले हम लोगों के दिल पर क्या असर करते हैं। हम ये काम अपनी मर्जी और अपनी खुशी से तो नहीं करते। अगर हमारे रब ने हमारा रिस्क इसी तरह से लोगों से वाबस्ता करके रखा है तो इसमें हमारा क्या कसूर है। लोग उल्टा मेहनत करने का दर्स देते हैं और कहते हैं कि कोई काम धंधा करके गुजारा कर लो। आखिर तुम कब तक यूं दूसरों के आगे हाथ फैलाते रहोगी। अब तुम बताओ कि मैं इस बुढ़ापे में क्या मेहनत करूं। वहाँ पर कुछ लोग ही थे जिन्होंने मेरी मदद की और इन पैसों से मैंने ये थोड़ा सा सामान लेकर आया। मेरे पास कुछ पैसे बच गए थे, ये लो संभाल के रख लो। जब मैं वापस आया तो मैंने इस भीड़ को वहाँ पर फिर से देखा। ये मेरे पीछे पीछे चलना शुरू हो गई थी। मैंने इसे वापस मोड़ने की कोशिश की मगर ये मुसलसल मेरे पीछे आ रही थी। तभी मैं इसे अपने साथ ले आया हूँ। मैंने आसपास लोगों से पूछा तो कोई भी इस भीड़ के बारे में नहीं जानता था। तुम तो जानती हो कि यहाँ पर लोगों के पास बकरियां तो मौजूद हैं मगर ऐसी रुई की मानी नर्म मुलायम सफ़ेद भीड़ किसी के पास भी नहीं है। अब मैंने गौर से भीड़ को देखा तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखती जा रही थी। उसकी नज़रों से मुझे अजीब सा एहसास हो रहा था। उसकी नज़रें कुछ कहते हुए कुछ बोलते हुए महसूस हो रही थी। मैंने उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे वो उसकी आंखें मुस्कुराई हों और उसने फिर अपना सर मेरे हाथ पर टिका दिया था। गोया उससे मेरा प्यार करना अच्छा लग रहा था। मेरा जहन अभी तक बाबा की बात में उलझा हुआ था। आखिर लोगों की बात ठीक थी, मुझे भी ये बात काफ़ी हद तक माकूल लग रही थी। मगर मैं सोच रही थी कि आखिर ऐसा कौन सा मेहनत वाला काम किया जाए जिससे हमारा गुजारा भी हो सके और हमें किसी से बातें भी ना सुनने को मिलें। सोचते सोचते फिर मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैंने तो अपनी अम्मा से हाथ से दस्तकारी करना सीखा था। क्यों ना मैं लोगों के कपड़ों पर दस्तकारी किया करूं और अपने इस हुनर को इस्तेमाल में लाऊं। जब मैंने बाबा से इस बात का जिक्र किया तो वो कहने लगे, हमसे कौन काम करवाएगा, हम तो फकीर लोग हैं, लोग तो हमसे नफरत करते हैं। वो हमें अपनी उतरन पहनने के लिए देते हैं, अपना जूठा खाना खाने के लिए देते हैं, वो भला अपने नए नकोर कपड़े हमें क्यों कर देंगे। बाबा की बात सुनकर मैं अफसरदा हो गई थी, मगर मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। तभी मैंने बाबा से कहा कि मुझे ये मतलूबा चीज़ें ला कर दें, बाकी का काम मेरा है। मेरे पास एक सफ़ेद रंग का सूट पड़ा हुआ था, वो बिल्कुल नया था। मैंने बाबा से जो फ्रेम और सुई धागा मंगवाया था, मैंने अपने हाथ से उस पर फूल बनाकर काटना शुरू कर दिए थे। जब मैंने ये डिज़ाइन बनाकर खुद देखा तो मैं देखकर हैरान रह गई थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे हाथ में इस कदर निफासत होगी। और फिर जब मैंने अपनी सहेली छीमो को ये कमीज दिखाई तो उसके मुंह से भी ये देखकर पानी आ गया था और वो मुझे कहने लगी कि ये कमीज मुझे दे दो। मगर मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी, फिलहाल मुझे ये सैंपल के लिए अपने पास रखनी है और तुम मेरे साथ गांव में चलो। ये बात सुनकर वो हैरान रह गई और कहने लगी, तुमने गांव में क्या करना है, तुम्हें तो भीख मांगने से सख्त नफरत है। मगर मैंने उससे कहा कि इस सवाल को तुम छोड़ो और मेरे साथ चलो। फिर मैं ढेर सारा चारा काट कर भेड़ के पास रखकर चली गई थी। जाते जाते मैंने जब भेड़ पर नजर डाली तो वो चमकती हुई आंखों से मुझे देख रही थी और जब मैंने गौर से देखा तो वो सर झुकाकर चारा खाने लगी थी। फिर मैं छीमों के साथ गांव में आ गई थी। गांव में आने से पहले मैंने अपना निस्बतन साफ सुथरा लिबास पहना था और बड़ी सी चादर में खुद को लपेट रखा था। अब मेरा साफ सुथरा हुलिया देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि मैं झुग्गी में रहने वाली लड़की थी, क्योंकि मेरा रंग भी बहुत ज्यादा साफ था और मैं किसी तरह से भी किसी लड़की से कम नहीं दिखती थी। गांव में आने के बाद मैंने फिर एक दो औरतों को जब अपने काम के सैंपल दिखाए तो उन्हें बहुत पसंद आए और उन्होंने मुझे काम करने के लिए कमीज भी दे दी। और फिर घर वापस आने के बाद मैंने इंतहाई दिल के साथ ये तमाम काम किया। मेरा सारा ध्यान इसी तरफ था कि मैं अच्छे से इस पर काम करूं ताकि दोबारा से वो लोग मुझसे काम करवाएं। और तभी काम करने के दौरान अचानक से मेरे हाथ से चाय का कप छलक पड़ा और वो कमीज पर गिर गया था। न सिर्फ कमीज का रंग खराब हो गया था बल्कि वो कढ़ाई भी बुरी तरह से खराब हो गई थी। मैं ये देखकर बुरी तरह से घबरा गई थी।
मेरे चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया था। मैं उसी वक्त अपनी जगह से उठी और कपड़े को धोकर दाग को मिटाने की कोशिश की, मगर वो दाग किसी तरह से भी नहीं जा रहा था। कपड़ा भी सफ़ेद रंग का था और ऊपर से चाय के दाग ने उसे अजीब ही रंग दे दिया था। मैं बुरी तरह से रोने लगी कि अब क्या होगा। ये मैंने पहली बार किसी से काम लिया था और मैं जितना इसको अच्छा करने के चक्कर में थी उतना ही मेरा काम खराब हो गया था। अब मुझसे कौन काम करवाएगा। बाबा ने मुझे रोते हुए देखा तो तसल्ली दी और कहने लगे कि फिक्र मत करो, कल दोबारा से इसको धोने की कोशिश करना और अगर दाग ना भी उतरे तो तुम इस औरत से माजरत कर लेना, उससे बता देना कि गलती से इसके ऊपर चाय गिर गई। मगर मैं सोच रही थी कि न जाने वो बेगम साहिबा मेरे साथ क्या सलूक करेंगी, क्योंकि वो तो शक्ल से ही बहुत गुस्से वाली लग रही थी। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई थी। सुबह जब उठी तो चीमो मेरे पास आ गई और मुझे इश्तियाक से कहने लगी कि मुझे वो कमीज दिखाओ जिस पर तुमने कढ़ाई की है, मैं देखूं तो सही कि कैसी लग रही है। ये बात सुनकर मैं फिर से फूट फूट कर रोने लगी थी। उसने मुझे रोते हुए देखा तो हैरान होने लगी। तभी मैंने उससे बताया कि मुझसे वो कमीज खराब हो गई है। उसके चेहरे पर बेयकीनी फैल गई और मुझे कहने लगी कि तुम तो इतना अच्छा काम करती हो, तुम्हारे हाथ में इतनी नफासत है तो वो खराब कैसे हो सकती है। ये कहकर मैंने उस कमीज की तरफ इशारा किया कि खुद देख लो। जब उसने कमीज देखी तो उसके मुंह से बेसाख्ता तारीफ निकल गई। वो कहने लगी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये काम तुमने किया है। अब जब मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि वो तंज कर रही है, मगर उसके तासुरात बिल्कुल नॉर्मल थे और आंखों में वाज़ेह सताइश नजर आ रही थी। जब मैंने कमीज देखी तो मेरा मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया था, क्योंकि वहां पर किसी किस्म का दाग या कोई निशान नजर नहीं आ रहा था और वो कमीज बिल्कुल साफ सुथरी थी और उसकी कढ़ाई में तो पहले से भी ज्यादा निफासत थी। ये देखकर मैं खुशी से खिल उठी, मगर मेरे दिल में ये सवाल जड़ पकड़ चुका था कि न जाने ये दाग खुद ब खुद कैसे साफ हो गया। और फिर अगले ही दिन मैं चीमों के साथ जाकर जब वो कमीज लेकर बेगम साहिबा के घर में गई तो उनका भी मुंह खुले का खुला रह गया था। वो हैरान परेशान रह गई थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये काम मैंने अपने हाथ से किया है। और फिर एक के बाद एक करके मुझे गांव से काम मिलने लगा था और मेरे हाथ में पैसे भी आने लगे थे। जब मेरे हाथ में पहली बार मेहनत की कमाई आई तो मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं खुशी से झूमती जा रही थी और दिन ब दिन मेरी आमदनी में इजाफा होने लगा था। और इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत होती थी कि मैं जहाँ पर भी पैसे रखती थी तो अगले दिन वो पैसे न जाने कैसे डबल हो जाते थे। मैं समझती थी कि शायद बाबा यहाँ पर पैसे रखते हैं और इसीलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया था। मगर एक दिन जब वहाँ पर पैसे मामूल से ज़्यादा जमा हो गए तो मैंने बाबा से पूछा तो वो ला इल्मी का इजहार करने लगे। वो कहने लगे कि मैं तो नहीं जानता कि तुम किन पैसों की बात कर रही हो, क्योंकि इन दिनों तो मुझे कोई काम मिल ही नहीं रहा। उनकी बात सुनकर मैं हैरान तो हुई, मगर उस बात पर मैंने गौर नहीं किया। फिर मैंने बाबा को कहा कि आप भी जानवर ले लें और मेहनत करके अपना रिस्क हिलाल हासिल करें। बाबा को भी मेरी बात बहुत पसंद आई थी और फिर उन्होंने बकरियां ले ली थीं। वो इस भेड़ को भी बकरियों के साथ लेकर जाना चाहते थे। पहले दिन जब वो भेड़ को कमरे से बाहर लेकर जाने लगे तो भेड़ जैसे मिनमिनाने लगी थी। उसका बिल्कुल भी इस झोंपड़ी से बाहर जाने का दिल नहीं कर रहा था। बाबा ने उस पर सख्ती करने की कोशिश की, उसे मारने लगे तो मैंने बाबा को रोक दिया और कहने लगी कि आप इससे कुछ मत कहें, आप इस पर हाथ मत उठाएं, मैं इसके लिए चारा यहीं पर ले आया करूंगी, आप इसे बाहर लेकर मत जाएं। तब मैंने भेड़ की तरफ देखा तो वो ममनून नजरों से मुझे देखने लगी थी। मुझे न जाने क्यों ऐसा लगने लगा था कि इसकी आंखें मुझे देखकर मुस्कुराती थीं। मैंने इस बात को वहम समझकर सर झटक दिया था और फिर मैं अब भेड़ के लिए बाहर से ढेर सारी घास काट कर ले आया करती थी और बकरियां चराने के लिए बाबा बाहर ले जाया करते थे। दिन ब दिन मेरा काम बढ़ने लगा था, मेरी आमदनी में इजाफा होने लगा था और दिन ब दिन हमारे जानवरों में भी इजाफा हो रहा था। आसपास के लोग मेरे बारे में अजीब बातें करने लगे थे। उनका कहना था कि मैं न जाने क्या गुल खिला रही हूँ जो मेरे हाथ में इतने पैसे आ रहे हैं। झोंपड़ी की लड़कियां अमूमन ऐसे ही पैसे कमाती थीं। वो लड़कों को अपने पीछे लगा लेती थीं और भीख मांगने के नाम पर अपनी इज्जत का कारोबार करती थीं और इस तरह से कमाई करके अपना और घर वालों का पेट पाल रही थीं।
मेरे इर्द गिर्द में रहने वाली औरतों को यही ख्याल गुजरता था कि शायद मैं भी ये घिनौना काम कर रही हूँ, मगर मैं तो ऐसा काम करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मुझे तो ऐसे कामों से सख्त नफरत थी। तभी तो मैंने इस सब के बजाय मेहनत करने पर तरजीह दी थी और बाबा को भी मैंने मेहनत के रास्ते पर चला दिया था। अब बाबा को भी दूसरों के सामने हाथ फैलाने से शर्म आने लगी थी और इस बात पर मैं जितना शुक्र अदा करती कम था। अब आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़ी के लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया था। आसपास के मर्द और लड़के मुझे देखकर आवाजें कसते थे, मुझ पर गलत सलत नजरें गाड़े रखते थे और बाबा की गैर मौजूदगी में मैं खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगी थी। उस दिन बाबा बकरियों को लेकर चराने के लिए गए हुए थे और मैं भेड़ के लिए घास काटने के लिए बाहर गई। तो उस वक्त मेरे पास काफी सारा काम था जो मैंने गांव की खवातीन को इन 2 दिनों में मुकम्मल करके देना था, क्योंकि कुछ दिनों तक ईद आ रही थी और ये कपड़े उन्हें ईद से पहले पहले चाहिए थे, क्योंकि आगे फिर उन्होंने दर्शन को ये कपड़े सिलाई करने के लिए भी देने थे। इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रही थी। आज जब मैं भेड़ के लिए चारा काटने के लिए बाहर आई तो आसमान अबर आलूद हो रहा था। काली काली घटाएं आसमान पर छाई हुई थी। बारिश बस बरसने को तैयार थी। मेरे बाबा की तरफ ध्यान चला गया कि न जाने वो कहाँ होंगी, क्या वो वक्त पर अपने ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। अमूमन जब बाबा बारिश में भीग जाते थे तो उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। मुझे इसी वजह से उनकी परेशानी थी। यही सोचते हुए मैं घास काट कर वापस मुड़ने ही लगी तो वहाँ पर 3-4 लड़के थे जो मुझे अजीब से तेवरों से देख रहे थे। उन लड़कों का शुमार आवारा तरीन लड़कों में होता था। उन्हें देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी और अपने रास्ते पर चलने लगी थी, जब उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया और मुझे कहने लगे कि सुना है कि आजकल बहुत ही ज्यादा तुम्हारे गांव में चक्कर लग रहे हैं और कई घरों में तुम्हारा आना जाना भी शुरू हो चुका है। जब भी तो तुम इतना बदल गई हो और हमारे जैसों को तो भाव नहीं देती हो। उनकी इंतहाई घटिया बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उनसे कहा कि मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे घर जाना है, बाबा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरी बात पर वो जोरदार कहकहा लगाकर बोला कि बाबा ने तुम्हारा इंतजार क्यों करना है। अगर बेटी कमाऊ हो तो बाप उसे खुली छूट दे ही देता है। आखिर को तुम्हारा कमाने का जरिया भी तो यही है। फिक्र मत करो, हम भी खाली मजे लेने वालों में से नहीं है, तुम्हें पूरा पूरा मुआवजा देंगे। मैं वहाँ से आगे बढ़ने लगी जब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और तभी एक अजीब बात हुई। उसे जोरदार झटका लगा था। ऐसे लगा जैसे उसे किसी ने उठाकर दूर फेंक दिया हो। बाकी दोनों लड़के मुझे हैरत से देखने लगे कि मैं देखने में तो धान पान से थी, मगर मुझ में इतनी ताकत थी कि मेरे धक्का देने पर वो कई फीट दूर जाके गिरा था, जबकि मैं हकीकत जानती थी कि मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया था। और मैं खुद हैरान हो रही थी वो इतनी दूर कैसे जा गिरा। तभी बाकी दोनों लड़के मेरी तरफ बढ़े और उनके साथ भी यही हुआ था और उन तीनों को बुरी तरह से चोट आई थी। मैं फौरन वहां से भागकर अपनी झोंपड़ी में आ गई थी। मेरा सांस बुरी तरह से फूला हुआ था। मैं यही सोचे जा रही थी कि न जाने उन लड़कों को अचानक से क्या हुआ और वो कैसे जमीन पर गिर गए। मुझे दिल ही दिल में डर लग रहा था। तभी मैंने भेड़ की तरफ देखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे उसकी नजरों में गुस्सा था और वो मुझे देख रही थी। ये देखकर मेरा हलक खुश्क हो गया। न जाने ये मेरा वहम था या मैं उस भेड़ के जज्बात उसकी आंखों से पढ़ लिया करती थी। मैं इस बारे में जितना सोच रही थी इतना ही उलझती जा रही थी। फिर मैंने वो चारा भेड़ के आगे रख दिया तो आज उसने चारा नहीं खाया था। वो जमीन पर बैठ गई थी और फिर जब बाबा घर आए तो मैंने ढके छुपे लफ्जों में बाबा को ये बात बता दी थी, क्योंकि अब मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। मैं चाहती थी कि हम यहाँ से चले जाएं और गांव में जाकर आबाद हो जाएं। यूं भी मुझे हमेशा से इस जंगल में रहना बहुत बुरा लगता था। मैं उसी बरादरी की थी, उसी कबीले की थी, मगर उसके बावजूद भी मुझे ये रहन सहन, ये मांग तांग कर खाना, गुजारा करना बहुत बुरा लगता था। मेरे हमेशा से ये ख्यालात थे कि मैं स्कूल में पढ़ लिख कर किसी काबिल बन सकूं, मगर हमारे कबीले में ये रवाज नहीं था। लड़कियों को स्कूल में जाने की, पढ़ने की इजाज़त नहीं थी और फिर मेरी लाख ख्वाहिश के बावजूद भी मेरे माँ बाप मेरी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सके थे, क्योंकि वो दोनों अपने कबीले वालों से डरते थे और उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते थे। जब भी मेरी लाख ख्वाहिश होने के बावजूद भी अम्मा और बाबा ने मुझे स्कूल में दाखिल नहीं करवाया था। मज़ीद कुछ साल गुजरने के बाद अम्मा इस दुनिया से रुखसत हो गई थी।
अब मैं और बाबा अकेले रह गए थे। मैं अक्सर ये सोचती थी कि हमारी भी क्या ज़िंदगी है। अल्लाह ने तमाम इंसानों को पैदा किया है, इंसानों को एक ही जैसा अक्ल और शऊर, दिमाग सब कुछ दिया है, तो फिर इसकी क्या वजह है कि कुछ लोग तो बहुत अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही होती हैं और कुछ हमारे जैसे होते हैं जिनके पास अपना घर तक नहीं होता, जिनकी कोई इज्जत नहीं होती। जब वो मुआशरे में चल पड़ते हैं तो लोग उन्हें अजीब तमस्कुराना नज़रों से देखते हैं और मेरी जैसी लड़कियों को तो लोग तर नवाला समझते थे। वो ये समझते थे कि शायद हम इसी काम के लिए पैदा की गई हैं कि वो हमसे अपनी हवस पूरी कर सकती हैं और हमसे जो चाहे काम करवा सकती हैं। ये रवैया मुझे बहुत तकलीफ देता था। अब जब मैं मेहनत करके इस काबिल हो गई थी कि मैं अपना और बाबा का गुजारा कर सकती थी, तो तब मैंने बाबा से डरते डरते ये बात कही कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, हम गांव में किसी घर में जाकर आबाद हो जाते हैं। मगर बाबा अपने कबीले वालों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि ये कबीले वाले मेरे दुख दर्द के साथी हैं, हमारा गम हमारा सुख साझा है और मैं उनको छोड़कर नहीं जा सकता। इसके अलावा तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, मगर मैं तुम्हारी ये बात नहीं मान सकता। फिर मैंने बाबा को डरते डरते बताया कि लड़के मुझे बहुत तंग करते हैं और आज तो उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। ये सुनकर बाबा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने फैसला किया कि वो जल्द ही मुझे इस बारे में बताएंगे कि आगे उनका क्या करने का इरादा है। कुछ दिनों के बाद रात के वक्त हमारी झोंपड़ी पर किसी ने हमला कर दिया। वो तादाद में 5-6 लोग थे जो झोंपड़ी में ज़बरदस्ती दाखिल हो गए थे। मैं और बाबा हड़बड़ा कर उठ बैठे। उन सब का रुख मेरी तरफ था। वो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, मगर अचानक से न जाने क्या हुआ कि वो वहाँ से चीखते चिल्लाते हुए भाग गए थे। बाबा और मैं हैरान परेशान रह गए। अब बाबा हर वक्त कुछ सोचते रहते थे। न जाने उन्हें क्या हुआ था कि उनकी परेशानी खत्म होने में नहीं आती थी। फिर बाबा कहने लगे कि मैंने गांव में पता किया है, वहाँ पर एक घर खाली पड़ा हुआ है और वो थोड़े से किराए के लिए हमें वो घर देने पर रजामंद हो गया है। ये सुनकर मैं खुशी से खिल उठी और बाबा से कहा कि फौरन यहाँ से चलें, मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकती। और फिर हम दोनों सामान बांधकर जब अपने जानवरों को लेकर वहाँ से जा रहे थे तो वाहिद छीमो थी जिसकी आंखों में आंसू थे। वो मेरे गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी और कहने लगी कि तुम मेरी सहेली हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम हमसे इतना दूर चली जाओगी। तो मैंने उससे कहा कि मैं इतना भी दूर नहीं जा रही, तुम्हारा जब दिल चाहे तो तुम मुझसे मिलने के लिए आ जाया करना। वो रोते हुए कहने लगी कि मेरे माँ बाप तो कभी भी मुझे तुमसे मिलने के लिए नहीं आने देंगे। अगर उन्हें ये बात पता चली तो वो तो मुझे जान से मार देंगे। तुम जानती तो हो कि तुमने कबीले वालों के खिलाफ जाकर सब लोगों को अपना मुखालिफ बना लिया है। उसकी बातों पर मैं मुस्कुराती थी और उसे तसल्ली देकर अपने गांव में रवाना हो गई थी। ये छोटा सा घर था, 2 कमरों का और एक छोटा सा जानवरों के लिए कमरा था। जब उन जानवरों के साथ भेड़ को बांधने की कोशिश की तो वो किसी तरह से भी काबू में नहीं आ रही थी। वो उस कमरे में जाने के लिए तैयार नहीं थी। एक ख्याल के तहत मैं उस भेड़ को जब अपने कमरे में लेकर आई तो वो बिल्कुल पुरसकून हो गई और दरवाजे के साथ ज़मीन पर बैठ गई। तब मैंने मुस्कुराते हुए बाबा को कहा कि इसे मेरे साथ इसी कमरे में ही रहने दें। तब बाबा ने इस बात पर कोई एतराज़ नहीं किया था और फिर रात को दरवाज़ा अंदर से बंद करके हम दोनों सो गए थे। ये हमारी यहाँ पर पहली रात थी और मुझे न जाने क्यों डर लग रहा था। शायद पहली बार मैं अपने कबीले और अपने इलाके से दूर हुई थी। सारी जिंदगी मैंने जंगल में गुजारी थी और पहली बार ही मैं आबादी में किसी घर में रह रही थी। ये मेरे लिए बहुत अनोखा और दिलचस्प तजुर्बा था। रात का वक्त था जब बाबा सो रहे थे। तमाम लाइट्स बंद होने के बावजूद पूरा कमरा रोशनी में नहाया हुआ था। मैं अपनी जगह पर उठकर बैठ गई और जब मेरी नज़र रोशनी की मुहर्रिक पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ये रोशनी उस भेड़ की आंखों से निकल रही थी जिसकी वजह से पूरा कमरा रोशन हो रहा था। मैंने अपनी आंखें मसल कर देखा ये ख्वाब था या हकीकत थी। काफ़ी देर तक कमरा रोशन रहा, फिर अचानक से वो रोशनी बुझ गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं हैरान थी कि ये सब क्या था। मैंने अक्सर जानवरों की आंखें रात को जलते हुए देखी थीं, मगर किसी जानवर की आंखें ऐसी नहीं थीं कि उसकी रोशनी से पूरा कमरा जगमगा उठे। मैंने सोचा कि मैं कल बाबा से इस बारे में बात करूंगी
और उनसे पूछूंगी कि आखिर इसकी क्या वजह है, मगर मुझे बाबा से इस बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिला और मेरे जहन से ये बात निकल गई थी। नाश्ता करने के बाद बाबा अपने काम पर चले गए थे और मैं अपने घर के कामों में मसरूफ हो गई थी। बाबा सारे जानवरों को बाहर लेकर चले गए थे, मगर भेड़ अभी तक घर में ही थी। यहाँ पर आसपास काफी सारे खेत थे जहाँ से मैं उसके लिए घास काट कर ला सकती थी, इसलिए मुझे उसकी तरफ से कोई फिक्र नहीं थी। रफ्ता रफ्ता मोहल्ले की औरतों को मालूम हो गया था कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ और अक्सर औरतें घर में आती जाती रहती थी। ज्यादातर का मकसद मुझसे काम करवाना होता था और वो इस बात पर खुश थी कि अब उन्हें आसानी से काम वक्त पर मिल जाया करेगा और जब भी वो मुझसे कोई बात करना चाहेंगी तो वो कर सकती थी। मैंने कढ़ाई के साथ साथ सोचा कि गांव में सिलाई का काम भी बहुत ज़्यादा चलता था और फिर मोहल्ले में ही एक औरत के पास बैठकर मैं 2-3 घंटे वहां पर जाकर सिलाई का काम सीखती थी और फिर घर में आकर हाथ से कढ़ाई किया करती थी, जिससे मेरा अच्छा खासा गुजारा होने लगा था। रफ्ता रफ्ता हमारे जानवरों के रेवड़ में भी इजाफा हो रहा था। बाबा अक्सर जानवर बेच दिया करते थे, जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होने लगा था। मैं इस बात पर बहुत खुश थी कि हमारी जिंदगी बदल गई थी। दूसरी तरफ वो पहाड़ों पर अमल करने लगा था। वो मुसलसल 40 दिन तक एक टांग पर खड़े रहकर अमल करता रहा और अपनी ताकतों में इजाफा करने की कोशिश कर रहा था। 40 दिन गुजर गए थे। उसे तो तब उसकी ताकतों में इजाफा हो गया था, मगर अभी तक उसकी ताकतें इस हद तक नहीं पहुंची थीं कि वो इसका सामना कर सकता या इसका मुकाबला कर सकता। उसका सामना करने के लिए उसे मज़ीद अपनी ताकतें बढ़ानी थी और मज़ीद ऐसे कितने ही चिल्ले करने थे। ये बात जानकर वो दिल ही दिल में झुंझला गया था, मगर जानता था कि एक बार अगर उसे मंजिल हासिल हो गई, एक बार अगर वो उसके हाथ आ गया तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकेगा। पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का ऐसा लालच था कि इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। वो कुछ भी कर सकता था। जब भी वो खतरनाक से खतरनाक अमल भी करता रहा, कभी पानी में खड़े होकर, कभी एक पांव पे मुसलसल कितने दिन तक खड़े रहकर, तो कभी तपते सहरा में नंगे पैर चलकर उसने अपनी ताकतों को बढ़ाना था, अपने मकसद को हासिल करना था। जब भी वो तमाम मुश्किलात और तकलीफों को अबूर करता गया था और उसे यकीन था कि एक न एक दिन वो मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। उसे बहुत से खतरात भी आए। कितनी ही बार उसे इस काम से बाज रहने के लिए उकसाया गया, उसे डराने की कोशिश की गई, मगर उसने किसी चीज़ पर भी अपने मकसद को रोका नहीं था, बल्कि वो पहले से ज़्यादा शिद्दत से इस सब को चाहने लगा था। उसकी चाहत में लगन थी, मगर उसकी नीयत में खोट था। वो अगर किसी अच्छी नीयत से ये सब हासिल करने की कोशिश करता तो शायद उससे इस सब में कामयाबी भी हासिल हो जाती, मगर अभी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो कामयाबी से दूर था। अब मैं सिलाई में भी ताक हो गई थी और घर के काम काज निपटाने के बाद मैं सिलाई और कढ़ाई का काम किया करती थी। दिन ब दिन मेरे पास काम बढ़ने लगा था और फिर मैंने अपनी आसानी के लिए लड़कियों को अपने पास काम करने के लिए रख लिया था। उन्हें मैं काम सिखाती भी थी और उनसे ये काम करवाती भी थी। अपना मुनाफा रखने के बाद उन्हें काम दे दिया करती थी। देखते ही देखते मेरे घर ने गोया स्कूल की सी हैसियत इख्तियार कर ली थी। कितनी ही लड़कियां थीं जो मेरी निगरानी में काम करने लगी थीं। मेरी कामयाबी और तरक्की देखकर बाबा बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। वो मुझे हमेशा खुश रहने की, कामयाब होने की दुआ देते थे। उस दिन भी मैं लड़कियों के साथ ही मसरूफ़ थी। जब भेड़ हस्बे मामूल मेरे कमरे में थी, मैंने उसके आगे चारा डाला और खुद किचन में आ गई। थोड़ी देर के बाद मुझे कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी थीं। ऐसे लग रहा था जैसे कोई किसी को उठा उठाकर ज़मीन पर पटक रहा हो। ये देख के मैं गड़बड़ा गई और जब उस कमरे में गई तो मैं हैरान परेशान हो गई, क्योंकि वो भेड़ मुझे कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने पूरा घर ढूंढा, मगर वो कहीं पे भी नहीं थी। दरवाज़ा अंदर से बंद था, छत पर भी कोई नहीं था। अब मैं सर पकड़ कर रह गई। न जाने ये भेड़ कहाँ पर चली गई। मैं उसको ढूंढ ढूंढ के थक गई थी। उसके साथ रह के मुझे उसकी बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी और मुझे ऐसे लगने लगा था जैसे कोई मेरा अपना करीबी मुझसे बिछड़ गया हो, मुझसे दूर हो गया हो। उसकी फिक्र में मैंने कोई काम भी ढंग से नहीं किया था। उसके साथ रह रह के मुझे उसकी बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी। मुझे ऐसे लगने लगा था जैसे कोई मेरा अपना करीबी मुझसे बिछड़ गया हो, मुझसे दूर हो गया हो।
اس کی فکر میں میں نے کوئی کام بھی ڈھنگ سے نہیں کیا تھا، مجھے اس کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ شام کو جب بابا گھر آئے تو میں نے بابا کے گھر آتے ہی انہیں یہ خبر سنائی۔ وہ بھی حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ وہ بھیڑ کہاں پر جا سکتی ہے، جبکہ تم بتا رہی ہو کہ دروازہ اندر سے بند تھا، کیا گھر میں کوئی آیا تھا؟ تبھی میرے ذہن میں عجیب سی آوازیں گونج اٹھیں۔ میں نے بابا کو کہا کہ کمرے سے عجیب آوازیں آ رہی تھیں، اور جب میں کمرے میں آئی تو یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر بابا بھی چپ رہ گئے اور سوچنے لگے کہ کیا ہو سکتا ہے کہ کسی لڑکی نے اسے گھر سے باہر نکال دیا ہو اور پھر دروازہ بند کر دیا، یا کوئی اور لڑکی اسے اپنے ساتھ لے گئی ہو۔ یہ بات بھی عین ممکن تھی، مگر میں اس طرح سے کسی کے بارے میں بات بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں نے کسی کو بھی اپنی آنکھوں سے اس بھیڑ کو کہیں پہ لے کر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مگر میں بہت زیادہ اداس ہو گئی تھی۔ میرا تو نہ کچھ کھانے کو دل کرتا نہ پینے کو، میرا کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا تھا۔ مجھے ایسے لگنے لگا تھا جیسے میرا اپنا قریبی مجھ سے بچھڑ گیا ہو، اور اس کی جدائی میں جیسے پاگل ہو گئی تھی۔ کافی سارے دن بیت گئے تھے، مگر دوبارہ وہ بھیڑ میں نے کہیں نہیں دیکھی تھی۔ جب میں گھر سے باہر نکلتی تو میری متلاشی نظریں اسی کو ہی ڈھونڈتی رہتی تھیں، مگر کہیں پہ بھی نظر نہیں آتی تھی۔ اس دن میں لڑکیوں کے ساتھ مصروف تھی، تب دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ دروازے کے باہر وہی بھیڑ کھڑی تھی، اور اب جب میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی آنکھیں دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ان آنکھوں میں میرے لیے محبت اور پسندیدگی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ میں نے گلی میں باہر نکل کر دیکھا، آس پاس کوئی بھی شخص نہیں تھا، تو پھر یہ بھیڑ یہاں پر کون لے کر آیا تھا؟ میں جلدی سے اسے گھر کے اندر لے کر آ گئی، اور کتنی دیر تک میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس بات کا یقین کرتی رہی کہ وہ دوبارہ سے میرے پاس آ گئی ہے، اور مجھے اس بات کی بے انتہا خوشی تھی، جیسے کوئی میرا قریبی عزیز مجھ سے بچھڑ کر دوبارہ مل گیا ہو۔ تبھی شام کو جب بابا کو میں نے یہ بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جاننے والا اس بھیڑ کو لے کر گیا ہو اور پھر خود ہی اس کو چھوڑ گیا۔ اسے یہ احساس پیدا ہو گیا ہو کہ اس نے غلط کیا ہے، جب بھی اپنی غلطی کے احساس ہونے پر اس نے اس بھیڑ کو چھوڑ دیا ہو۔ بابا کی بات بھی عین ممکن تھی، اور میں اسی پر خوش تھی کہ وہ بھیڑ مجھے واپس مل گئی تھی۔ مگر اب عجیب باتیں ہونے لگی تھی۔ گھر میں رات کو کسی کے بھاگنے دوڑنے کی آوازیں آنے لگتی، ایسا لگتا تھا جیسے چھت پر کوئی بھاگ رہا ہو، اور کبھی کبھار باہر سے کسی کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ میں اور بابا سخت پریشان تھے کہ یہ کیا ہو رہا تھا، اور اس دن رات کو پھر سے باہر سے خوفناک آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں اور بابا حیران پریشان رہ گئے تھے۔ بابا کہنے لگے کہ میں کمرے سے باہر جا کر دیکھتا ہوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے، یہ کون ہے جو شور مچا رہا ہے اور ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے۔ میں نے بابا کا بازو پکڑ لیا اور انہیں کہنے لگی کہ آپ اس وقت باہر مت جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے باہر ایسا کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا دے۔ میری وجہ سے بابا خاموش ہو گئے، مگر ان کے چہرے پر تشویش کے سائے نظر آ رہے تھے۔ تبھی ہماری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیڑ اپنی جگہ سے غائب ہو گئی تھی۔ میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس بھیڑ کا غائب ہونا ہی تھا کہ اس کے بعد باہر سے شور کی آوازیں مزید بلند ہونے لگی تھیں، اور میرا خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ بابا کہنے لگے کہ یہ بھیڑ مجھے انتہائی عجیب حالات میں ملی تھی۔ میں اکثر سوچتا تھا کہ اتنی خوبصورت اور صحت مند بھیڑ کو کوئی یوں کیسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ اس کا کوئی مالک بھی نہیں تھا، اور اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یقیناً یہ کوئی جادوئی سلسلہ تھا، اور اب تو مجھے اس بات پر یقین ہو گیا ہے۔ آپ دیکھو کہ کوئی عام جانور کیسے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو سکتا ہے۔ بس اب اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ میں یہ بات سن کر بابا سے لپٹ گئی اور انہیں کہنے لگی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر سے خوفناک آوازوں کا سلسلہ بلند سے بلند تر ہوتا جا رہا تھا، اور پھر ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ اتنا سکون تھا جیسے کہ یہ آوازیں سنائی ہی نہ دے رہی ہوں، مگر اب میں ڈر گئی تھی، اور وہ رات میری آنکھوں میں کٹی تھی۔ دن تیزی سے بیتتے جا رہے تھے۔ میں نے دوبارہ اس بھیڑ کو آس پاس نہیں دیکھا تھا، مگر میرے دل میں یہ خوف جڑ پکڑ چکا تھا کہ یقیناً وہ کوئی اور ہی مخلوق تھی،
जो हमारे घर में आ गई थी। मगर वो कौन थी और उसने कभी हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। उसका आखिर मकसद क्या था? मैं चाहती थी कि वो जो कोई भी था वो दोबारा से मेरे सामने आए, ताकि मैं उससे पूछ सकूं कि वो कौन था और वो हमारे साथ इतने टाइम तक क्यों रहा था। उस दिन लड़कियों को छुट्टी थी, बाबा भी घर से बाहर थे। आज मैं घर पर अकेली थी। उस वक्त मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी जब मुझे दरवाजे में वही भेड़ नजर आई। वो सर उठाए मेरे चेहरे की तरफ देख रही थी। उसे देखकर मैं बौखला गई। खौफ से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं, क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था और वो भेड़ कमरे में कैसे आ गई थी, जबकि उस दिन मैंने उसे अपनी आंखों के सामने गायब होते देखा था। मुझे यकीन आ गया था कि वो कोई आम भेड़ नहीं थी, न जाने वो कौन सी मखलूक थी। मैं डर के मारे रोने लगी तो वो भेड़ इंसानी आवाज़ में कहने लगी, तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया और अभी भी मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। उसे इंसानी जुबान में बोलते देखकर मैं हक्का बक्का रह गई थी। मैं उससे कहने लगी, क्या तुम्हें मेरी जुबान बोलनी आती है? तब वो कहने लगी कि हाँ, मुझे तुम्हारी आवाज़ में बोलना भी आता है और मुझे तुम्हारी जुबान समझ में भी आती है। मैं दरअसल एक जिनज़ादा हूँ और मैं शहंशाह जिन्नात का बेटा हूँ। मुझसे कुछ गलती हो गई थी जिसकी बिना पर मुझे ये रूप दे दिया गया था और कुछ टाइम के बाद मैं अपने असल रूप में आ जाऊंगा। मुझे सज़ा के तौर पर इंसानी दुनिया में भेज दिया गया था। मगर मैं जब इंसानी दुनिया में आया तो एक जादूगर को मेरे बारे में खबर मिल गई थी और वो मेरे पीछे पड़ गया था। वो जान गया था कि मैं बेपनाह ताकतों का मालिक हूँ, क्योंकि मैं शहंशाह जिन्नात का बेटा हूँ। अगर मैं उसकी कैद में चला जाता, उसकी गुलामी में आ जाता, तो मेरे साथ मेरे तमाम खुदाम जिन्नात भी उसके कब्जे में जा सकते थे। हम सब उसके हुक्म मानने के ताबे हो सकते थे, मगर मैं ऐसा कभी मरकर भी नहीं होने दे सकता था। मेरे खुदाम मेरी हिफाजत करने के लिए हर वक्त मेरे साथ मौजूद रहते थे। मुझे किसी ऐसे शख्स के साथ रहना था जहाँ पर रहने के बारे में उस जादूगर को या उसके जिन्नात को बिल्कुल भी खबर ना हो सके। और तभी मुझे तुम लोगों से ज़्यादा मौजू और कोई नज़र नहीं आया था। उस वक्त मैं तुम्हारे बाप के सामने आ गया और वो मुझे लेकर अपनी झोंपड़ी में आ गया। मैं जानता था कि तुम रोज़ाना हिसार कायम करके सोने की आती थी, इसीलिए तुम्हारे इस हिसार कायम करने की वजह से मैं कभी वो जादूगर या उसके चिल्ले मुझ तक नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए मैं हर वक्त इस झोंपड़ी के अंदर रहता था, वहां से कभी बाहर ही नहीं निकला था, ताकि मुझ पर किसी की नज़र न पड़े। और मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरी ज़रूरियात को पूरा किया और मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं पहुँचाई। मैं दिल से तुम्हारी कदर करता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं उससे कहने लगी कि मुझे ये जानकर बहुत दुख हुआ है कि तुम्हें सज़ा के तौर पर ये रूप मिल गया है। वो कहने लगा, मगर मेरी सज़ा में चंद दिन ही बाकी हैं। चंद दिनों के बाद मैं दोबारा से अपने असली रूप में आ जाऊंगा और अब मैंने अपने अकलौते दुश्मन को भी ख़त्म कर दिया है। अब मुझे किसी से कोई ख़तरा नहीं है। फिर ये बात कहकर वो वहाँ से गायब हो गया था। अब अक्सर ही वहाँ पर वो आने लगा था और मज़ीद 2 माह का अरसा गुजरा तो एक दिन वो एक नौजवान लड़के के रूप में मेरे सामने था। मैंने उसको देखा तो पलकें झपकाए बिना उसको देखती रही। वो बिलाशुबा मर्दाना वजाहत का शाहकार था और फिर उसे देखकर मेरे दिल में शिद्दत से एहसास जागा कि काश वो एक इंसान होता तो आज मैं उसके साथ उसकी ज़िंदगी गुजार रही होती। जब उससे मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो वो ज़ोर से हंस पड़ा और कहने लगा कि तुम जिस कदर खूबसूरत और अच्छी हो, तुम्हें देखकर मेरे दिल में भी यही ख्याल पैदा हुआ था। मगर अफसोस कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद तो कर सकते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत भी कर सकते हैं, मगर कभी भी एक नहीं हो सकते। उसकी आवाज़ बात करते करते भीग गई थी और मैं भी ये बात सुनकर उदास हो गई थी। उस जिनज़ादे ने हमारी बहुत मदद की थी। उसने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुमने अपने बाबा को या किसी को भी इस बारे में बात नहीं करनी, और फिर उसकी मदद से ही हम लोग गांव छोड़कर शहर में आकर आबाद हो गए थे और यहीं पर मैंने अपना बहुत बड़ा बुटीक भी बना लिया था और बाबा से भी मैंने तमाम काम छुड़वा दिए थे। दिन ब दिन मेरा बुटीक तरक्की करता जा रहा था। घर में भी मैंने छोटी सी फैक्ट्री बना ली थी जहाँ पर बहुत सी औरतें और लड़कियों को मेरी वजह से रोजगार कमाने का मौका मिल रहा था और बाबा भी मेरी तरक्की देखकर दिल ही दिल में खुश हो गए थे। अब मैंने सोचा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी तो बदल ली थी, मगर अब अपने बाकी खाना बदोश कबीले वालों की ज़िंदगी बदलना चाहती थी, ख़ास तौर पर छीमों और बाकी सहेलियों की।
अब जब मैं वहाँ पर गई और उन्हें मैंने ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबक पढ़ाया तो कुछ लोगों ने तो मेरी बात पर लब्बैक कहा था, मगर कुछ लोगों ने मुझे भटका हुआ कहकर मुझे धुतकार दिया था। और फिर जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते थे, उन्हें मैं अपने साथ ले आई थी। उन्हें मैंने रोज़गार कमाने पर लगा दिया और जब वो भीख मांगने जैसी जिल्लत भरी ज़िंदगी से निकलकर मेहनत से कमाने की तरफ आए तो उनकी खुशी भी दीदनी थी और वो मेरा शुक्रिया अदा करते नहीं थकते थे। और मेरी ज़िंदगी का हासिल यही था कि मैं उन लोगों को खाना बदोशी की ज़िंदगी से निकालकर इज्जत वाली ज़िंदगी देना चाहती थी। इस मकसद के लिए मैं एक NGO के साथ भी मुंसलिक हो गई थी और अपना काम पहले से ज़्यादा दियानतदारी और खुश असलूबी से करने लगी थी। कितनी ही औरतों को मैंने अपने काम के साथ मुंसलिक कर लिया था। मेरे बाबा को मुझे देखकर मुझ पर फ़ख्र होता था और मुझे इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए था। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।